योग्यता विचारे किछ नहीं पाए तो हमारा करुणाशय होते। तो फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर नंबर 12। शिवया लोकस्य भावया भूतये यो उत्तम श्लोको परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थम् अशुप्रशर परशरयाम् मुमंच निविद्यया कुतक कलेबरम्। Those who are devoted to the cause of the personal Godhead, live only for the welfare, development and happiness of others. They don't live for any selfish interest. So even though the Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly positions, how could he give up his mortal body which was shelter for others? यहाँ पे ये बोल रहे थे जो भक्त है भगवान के लिए जो उनका लाइफ को डेडिकेट कर दिया वो अपना इंटरेस्ट के लिए जीता नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फिर ये तो अपने के लिए तो अपना हैप्पीनेस के लिए नहीं है, फिर ये क्यों छोड़ दिए, क्यों इन शरीर त्याग करने चले गए, ये पूछ रहे हैं। कौन? परीक्षित महाराज क्यों चले गए? That means those who are devoted to the cause of personality Godhead live only for the welfare of others, only for the welfare, others welfare, development and happiness of others. तो अपना वेलफेयर नहीं देखते हैं, दूसरा का वेलफेयर देखते हैं। ऑफकोर्स अपना भी वेलफेयर देखना चाहिए, लेकिन they are not selfish. Development and happiness of others. They don't live for selfish interest. So even though the Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly position, how could he give up his mortal body which was shelter for others? तो इनका जो शरीर है वो दूसरा के लिए था, दूसरा का शेल्टर देने के लिए, क्योंकि राजा प्रजा का शेल्टर देने के लिए इसका शरीर है। अपना आजकल का राजा ऐसे नहीं है कि अपना इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। और प्रसाद प्रभुपाद की जय। परीक्षित महाराज was an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of Godhead. A devotee of the Lord automatically has all good qualification, and the emperor was a typical example of this. Emperor personally he had no attachment for all the worldly opulences in his position. Personally in his position he had no attachment for all the worldly opulences, but since he was the king for all around all around welfare of his citizens, he was always busy in the welfare work of the public, not only for his life, for this life, but also for the next. जो भक्ति में एंगेज होते हैं, एंगेज कराते हैं, वो नेक्स्ट लाइफ काम में आता है। He would not allow slaughterhouses or killing cows. He was not a foolish and partial administrator who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed. Because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct the administration for everyone's happiness. Man, animal, plants, and all living creatures. He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. He was neither. His interest was to please the supreme truth, personality Godhead. The king is the representative of Supreme Lord, and therefore the king's interest must be identical with that of the Supreme Lord. The Supreme Lord wants all living beings to be obedient to him and thereby become happy. Therefore, the king's interest to guide all subjects back to the kingdom of God. Hence, the activities of the citizens should be so coordinated that they can, at the end, go back to Godhead. Under the administration of a representative king, the kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. There are ample food grains, milk, fruit, and vegetables. So the human beings as well as the animals can eat sumptuously and their heart's content. If all living beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. Emperor Parikshit was a worthy king, and therefore all were happy during his reign. बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक है। तो जो भक्त है वो क्या करता है, वो दूसरा
दूसरा के लिए वेलफेयर के लिए चिंतन करता है, उसके लिए काम करता है, उसका डेवलपमेंट हैप्पीनेस ऑफ अदर्स के लिए सोचता है। तो इसलिए महंत स्वभाव ही तारित पामर निज कार्य नहीं जाऊ तब तब जाऊ तार घर। तो दैट मीन्स दे ऑलवेज हैविंग इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। यहाँ पे जो राजा है, इसको बोलते राजा को बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, रिप्रेजेंटेटिव गॉड, क्योंकि ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राजा को इसलिए भी वन ऑफ द 5 फादर्स, हमारा 7 मदर है, 7 माँ है, 5 पिताजी है। हम लोग का ये सुनने से लोग बोले 7 माँ, आत्मा माता, गुरु पत्नी, राजा पत्नी, गाभी, भूमि, मतलब धरित्री, धात्री, और इस टाइप का 7 है। पिता भी ऐसे है। तो राजा हमारा पिता है, गुरुदेव पिता है, स्पिरिचुअल फादर, अपना बायोलॉजिकल फादर एक है। देन यहाँ वहां पे काऊ माता है, गाँव यहाँ पे है। बुल इज आवर फादर, तो क्योंकि वो प्लाविंग करके, खेती करके हमको वहां से, हमको खेत से हमको मिलता है वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब है इस टाइप का। तो राजा ये हमारा पिता जैसे है। तो पिता पुत्र का, बेटा का भलाई देखता है सब समय। तो इसलिए यहाँ पे तो वो एक जीव को मार के दूसरा जीव को बचाना चाहेगा। उसका प्रजा, प्रजा मीन्स प्रजा, प्रजायती प्रजा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजा मतलब नहीं है खाली ह्यूमन बीइंग प्रजा है, नहीं, जो भी उनका एरिया का अंडर में, उनका राज्य में जो भी पैदा होता है उसको बोलते प्रजा। मतलब ह्यूमन बीइंग हो या पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पत्ता हो, ये सारे प्रजा होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आजकल का दुनिया का लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए वो खाली सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का बारे में सोचते हैं, उसका वेलफेयर का बारे में, लेकिन पशु का बध करेंगे, स्लॉटर हाउसेस खोलेंगे, इवन काउ किलिंग भी चल रहा है। तो दैट इज दी बहुत डेंजरस पार्ट है। तो वो राजा एक्चुअली राजा नहीं है। यहाँ पे ये बोले सबका वेलफेयर देखना है, इसलिए उनका उस टाइम में उनका कोई स्लॉटर हाउस नहीं था, कोई मीट ईटिंग नहीं था। यहाँ पे लिखा ना, नो एनिमल मीट, ह्यूमन बीइंग्स नीड नॉट एनिमल्स। एंड कोई एम्पल फूड था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, मिल्क था। Animals can be eat sumptuously also to the heart contents. All beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules. तो ये राजा का ये काम था। तो selflessness, selfishness is either self-centered or self-extended. What is extended selfishness? Can anybody tell? Selfishness ये self-centered है। यहाँ पे बोला अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना शरीर के लिए खाली सोचता है। तो एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस क्या कहते हैं? एनीबॉडी? सपोज हम खाली अपने बारे में सोचते हैं, वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन हम अगर हमारा बच्चा, फैमिली के लिए सोचते हैं, वो भी सेल्फिशनेस है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है। और भी एक्सटेंडेड, और भी एक्सटेंड हो सकता है। लाइक कोई अपना गांव के लिए खाली सोचता है, कोई अपना नेक्स्ट तो जाता है अपना कंट्री के लिए, देश के लिए सोचता है, उसका आदमी देखेगा अपना वर्ल्ड के लिए खाली सोचेगा। दीज आर कॉल्ड एक्सटेंडेड सेल्फलेसनेस, बिकॉज अपना शरीर का रिलेटिव है, रिलेटिव है, शरीर का रिलेटेड चीज को वो बढ़ाता रहता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेल्फलेसनेस। इसलिए कोई बोलता है कि मैं देखिए देश के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो सेल्फिशनेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। कोई बोलता है विलेज के लिए कर रहे हैं, मेरा टाउन के लिए कर रहा हूँ, मेरा कंट्री के लिए कर रहा हूँ। दीज आर ऑल डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। ये है, इसलिए इसको बताना चाहिए एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। याद रखिए इसको। व्हाट इज सेल्फिशनेस, ये बहुत बहुत बेसिक कांसेप्ट है। इसी से लोग, या जैसे प्रजा, ये वर्ड को याद रखिए। व्हाट इज प्रजा? प्रजा अतिथि, प्रजा मीन्स एक का राजा का या कंट्री में जो जो पैदा होते हैं, जो जो है, ऑल लिविंग एंटिटीज आर प्रजा। तो नॉट ओनली खाली ह्यूमन बीइंग्स, बट एक कुत्ता भी उसका प्रजा होता है, एक चिड़िया भी उसका प्रजा होते हैं उस राजा का। यहाँ पे
उसके लिए भी केयर करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं कि एनिमल को मार के आदमी को खुश रखो, एनिमल शॉर्ट हाउस बढ़ाओ, ये सब राजा का काम नहीं है। ये सब करने से दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। देन नेक्स्ट 13 श्लोक, तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठयादिह किंचनः न्यून्ये त्वयं विषये वाचं शांतं स्नातम अन्यत्र च चंद्रसात्। We know that you are expert in the meaning of all subjects except some portion of the others, and thus you can directly explain the answers to all the questions we have just put to you. शुद्ध गोस्वामी को पूछ रहे हैं, नैमिषारण्य ऋषि बोल रहे हैं, you are very expert in all subjects except some portion of the Vedas, and thus you can purport. So Prabhupada, the difference between Vedas and Purana is like that between the Brahmanas and the Parivrajacharya. एक लाइन है। तो बिटवीन वेद एंड पुराण में क्या डिफरेंस है? लग जैसे एक ब्राह्मण एंड परिव्राजकाचार्य में डिफरेंस है। ब्राह्मण क्या करता है? द ब्राह्मण आर मीन टू एडमिनिस्टर सम फ्रूटी sacrifices meant in the Vedas, but the Parivrajacharya or the learned preachers are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. तो ब्राह्मण क्या करता है? sacrifice यज्ञ करता है। परिव्राजकाचार्य क्या करता है? परिव्राज, परिव्राज मीन्स घूमना, माने चारों तरफ में चलना जाना। परिव्राज, परिव्राजकाचार्य क्या करता है? ज्ञान वितरण करता रहता है। और यहाँ पे सोकल ब्राह्मण जो है वो बैठ के एक जगह में यज्ञ करता है, तो इसलिए परिव्राजकाचार्य। मतलब ब्राह्मण का ऊपर में परिव्राजकाचार्य आते हैं, जैसे शूद्र क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, उसका अपना वैष्णव। ये वैष्णव फिर डिफरेंट कैटेगरी आते हैं, उत्तम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो परिव्राजकाचार्य ये सन्यासी लेवल का है, इसको बोलते हैं सन्यास। एंड वैष्णव है, सन्यास है। यहाँ पे अगर ब्राह्मण का ऊपर में लगे तो ये सन्यास धर्म में रहते हैं परिव्राजकाचार्य, मतलब दे आर डिटैच्ड। तो इसलिए ये वैष्णव को या जो उत्तम भक्त है वो, या जो सन्यास है, स्पेशली सन्यास, जो सन्यास है, सन्यासी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का है। उसमें 3 टाइप का बेसिकली है, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य। इसको याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुटीचक, बहुदक, एक कुटीचक होते हैं, एक बहुदक होते हैं, एक परिव्राजकाचार्य होते हैं। तो हमारे टीचर बोलते थे कुटीचक, बहुदक, देन परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य हाईएस्ट लेवल में सन्यासी है। 3 टाइप का सन्यासी है, उसको 3, एक कुटीचक है, बहुदक है, परिव्राजकाचार्य है। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसको सुनिए बार बार, तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। कुटीचक क्या करता है? वो घर से निकल जाता है, ठीक है, लेकिन एक जगह में कुटिया में या एक जगह में बस्ती करता है। सन्यासी जो है वो घर में नहीं रहता है, घर से डिटैच हो जाता है, लेकिन एक जगह में जाकर रहता है। कुटीचक अपना एक जगह में रहता है, तो घर का साथ में संपर्क नहीं है, सन्यास ले लिया। बहुदक, उदक मीन्स दैट, मतलब उदक, बहुदक मीन्स वो क्या करेगा? डिफरेंट लोगों के पास में जाकर भिक्षा करेगा, और भिक्षा में जो मिलेगा उसी का हिसाब से चलेगा, प्रचार करेगा। तो बहुदक। परिव्राजकाचार्य उतना भी नहीं, उससे ज्यादा है। डिफरेंट जगह में वो डिफरेंट प्लेसेस में जाएगा, प्रचार करेगा। तो परिव्राजकाचार्य, हमारा शिला प्रभुपाद को हम लोग परिव्राजकाचार्य कह सकते हैं। तो वो इकट्ठा एक जगह में नहीं रह के प्रीचिंग नहीं करते थे, या बहुदक भी नहीं है। तो परिव्राजकाचार्य तो वो हाईएस्ट लेवल का सन्यास है, इसको बोलते हैं परिव्राजकाचार्य। तो यहाँ पे ब्राह्मण परिव्राजकाचार्य का डिफरेंस बोला थे, तो ये पॉइंट को भी याद रखिए। ब्राह्मण मीन सेक्रीफाइस है, परिव्राजकाचार्य घूमता रहता है, डिस्मिनेट ट्रांसफर नॉलेज टू ऑल वन एंड ऑल। As such, the Parivrajakaचार्य are not always expert in pronouncing the Vedic mantra, which are practiced systematically by accent and meter by the Brahmanas, or meant for administering Vedic rites. Sometimes ये ब्राह्मणिकल जो है यज्ञ के लिए जो मंत्र है, ये सब शायद परिव्राजकाचार्य एक्सपर्ट ना भी हो, लेकिन नॉलेज जो स्पिरिचुअल नॉलेज को जानते हैं, एक्सपर्ट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वेद का हो सकता है मंत्र को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वेद का सारांश जानते हैं, प्रचार करते हैं।
Yet it should not be considered Brahmanas are more important than itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are made for the same end in different ways. तो ये वन एंड डिफरेंट है वन सेंस में, दो एक दोनों का काम है। ये बैठकर ब्राह्मण भी भगवान को खुश करता है यज्ञ करके, ये भी भगवान को खुश करता है भगवान का नाम को ग्लोरिफिकेशन का प्रचार करते हुए। तो ये सेम एंड भगवान को खुशी करना दोनों का काम है, बट इन डिफरेंट वे में। There is no difference also between Vedic mantras and what is explained in the Puranas and इतिहास। वैदिक मंत्र जो बोलते हैं पुराण इतिहास में सेम चीज को है, प्रैक्टिकल वे में दिया गया है। According to Srila Jiva Goswami, it is mentioned in the Madhyandina Shruti that all the Vedas, namely Sama, Atharva, Rig, Yajur, Purana, Ityas, Upanishads are emanations from the breathing of the Supreme Being। भगवान का सांस से ईश्वर से ये सब निकला है। The only difference is that Vedic mantras are mostly begin with pranava ओंकार। वैदिक सारे वैदिक मंत्र में स्टार्टिंग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम रहेगा। ओम को बोलते प्रणव प्रणव ओंकार, ओमकार से शुरू होगा। सारे वैदिक मंत्र का स्टार्टिंग में ओम करके स्टार्ट होता है। ओम मीन्स कौन बोल सकता है, पहले से बोला है ओम। ओम मीन्स क्या है, ओम में क्या है, ओम मीन्स रिप्रेजेंट क्या करता है ओम? ओम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं ओम। और डीपली जाने से ओम इज साउंड रिप्रेजेंटेशन लॉर्ड, ठीक है। वो तो नाद ब्रह्म है, वो साउंड जिसको बोलते हैं आप साउंड से। ये ओम में तीन चीज है, ओम ओम ओकार मकार सत्य रज सत्य गुण नहीं, एक मिनट, ओम है ओम ओम, तो ओम में ओ मीन्स कृष्णा, ऊ मीन्स राधानी, मो जीवा। तो ओम में सारे भगवान एंड उनका एनर्जी मिला हुआ रहा है, तो इसलिए उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड लॉर्ड या गॉड, बताइए। हम लोग श्रीमद् भागवत स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो ओम ओम भगवान और डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ इन वन सेंस इज सेम, बट स्टिल देन देयर इज ए लिटिल टेक्निकल डिफरेंस। क्या है, एनीबॉडी? पहले हम भागवत में स्टार्टिंग में डिफरेंस पहला श्लोक को डिस्कस किए थे, उसमें 1.1.1 में। हाँ स्वामी बताओ। शुभुनी हाँ ठीक है, ठीक। हाँ वो तो ठीक है, इम्पर्सनल फीचर्स है, साउंड रिप्रेजेंटेशन है, वो तो ओम एंड भगवान। लेकिन नहीं, हम बोले भगवान या गॉड, जो इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, और दूसरा वर्ड है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ और गॉड दोनों सेम है, लेकिन देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस आल्सो। अगर डिटेल में जाएंगे तो वो डिफरेंस क्या है, हम बोलते हैं ना द एब्सोल्यूट ट्रूथ मींस भगवान है, लेकिन इन वन सेंस भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? हरे कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ में कोई परिया जेटा करी
परम सत्य जोटा चेंज हेनी किछि परम सत्य किंतु गॉड कहले गोटे पर्सनल फॉर्म नहीं वो नहीं है, याद रखिए। फिर दोबारा बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देते नहीं है ध्यान, वो सब पढ़ते हैं जो है वो रह जाता है बैकग्राउंड में। उसको थोड़ा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसको रिपीट करने से याद आएगा। ये बहुत बहुत सटल डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। गॉड इज मीन्स ओनली गॉड को, कृष्ण को मानेंगे हम सपोज, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ करना तो कृष्ण एंड इनका एनर्जी को मिलके एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो जनरली भगवान और उनका एनर्जी अलग नहीं होते हैं, तो लेकिन थोड़ा सटल वे में यहाँ बोला जाता है कि भगवान, खाली भगवान विदाउट हिज एनर्जी नॉट एग्जिस्टिंग, तो खाली भगवान को एड्रेस करते हैं गॉड, लेकिन गॉड और उनके साथ एनर्जी मिलने से एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सारे, मतलब गॉड इज एनर्जेटिक, उनका एनर्जी एक्चुअली एनर्जेटिक से एनर्जी अलग नहीं हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलने से प्राइम मिनिस्टर का पावर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एज ए खाली प्राइम मिनिस्टर को अगर पकड़ेंगे नॉट कंसीडरिंग एनर्जी, तो देन उनको बोलते हैं गॉड। और पावर उनका साथ में मिला हुआ है, एनर्जी, राधा रानी, जीवा, ये सब मिलने से कृष्णा, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो सिंपली कृष्णा, राधा रानी एंड जीवा है, तो सिंपली कृष्ण को हम बोलेंगे गॉड। कृष्ण के साथ में राधा रानी एंड दूसरा एनर्जी जीवा सब है, तो इसको मिलने से एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलेंगे। दो कृष्ण से उनका एनर्जी अलग नहीं हो सकते हैं, फिर भी एक सटल डिफरेंस के लिए बोला जा रहा है। दो गॉड एंड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एब्सोल्यूट ट्रूथ, और ये दोनों अलग नहीं होते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ और गॉड में स्लाइट अगर सटल डिफरेंस ये है, ठीक है। एनीवे सब ध्यान दीजिए, ध्यान, इसलिए प्रभुपाद बोला बहुत ध्यान से पढ़िए, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना पड़ेगा, स्क्रूटिनाइजिंगली सुनना पड़ेगा, हमारा कान को पूरा खड़ा करके और नीचे लिखना पड़ेगा। एक दो पॉइंट जो बोल रहे हैं उसको फिर कितना, देखिए बता रहे हैं, मतलब 5 मिनट हो गया उसके बारे में बता रहे हैं, उसी में 2 लाइन लिख सकते हैं, 1 लाइन तो लिखना है। एनर्जी एंड प्लस एनर्जेटिक इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, ओनली एनर्जेटिक इज कॉल्ड लॉर्ड गॉड, ये डिफरेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए, सब देन ओनली आपको लोग पूछेंगे तो पता है कुछ शास्त्र का कुछ, इसलिए बोला ना परिव्राजक का, सारे शास्त्रों को पता होना जरूरत नहीं है, उसका यज्ञ का पता करना ऐसे जरूरी नहीं है, और ही शुड नो द एसेंस ऑफ दिस शास्त्र, स्क्रिप्चर्स का एसेंस को पता भी होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रभुपाद का किताब में कोई भी एक पर्पट को पढ़ लेंगे, बहुत आपको लगेगा कि प्रभुपाद क्या चीज लिखा है, मतलब प्रभुपाद ने कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, तो ये टीकाकार और भी डीपली जाते हैं, बट एनीवे गुरु कृष्ण कृपा से थोड़ा सा हम लोग को ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जितना क्लास किया गया ना अभी तक 1.5 साल से, अब उसी क्लास को अगर पता नहीं किसका है नहीं है, उसको सुनेंगे ना तो हो जाएगा आराम से। चौदह श्लोक में इसको पढ़िए, 14 श्लोक चित्रप्रभु उसको पढ़ो। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 14, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशरात् योगी वासव्यं कलया हरे। सुत श्री सुत गोस्वामी उवाच कहले, सुत उवाच द्वापरे द्वितीय युग द्वापर युग समनुप्राप्ते आगमन रे तृतीय युग
ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାତ ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ପରାଶରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ମହାରାଜ ଯୋଗୀ ବାସବ୍ୟଂ ବସୁଙ୍କ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ କଳୟା ଅଂଶ ବା କଳରେ ହରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ପରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମହାନ ଋଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହେଲା. Sutta Goswami said when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parasara in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତା ଏବଂ କଳି ଏହି ଚାରି ଯୁଗରେ ଏକ କାଳକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭ୍ରମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚାରି ଯୁଗର ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ବାର ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଗଲା. ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା. ଏହା ମହର୍ଷିଙ୍କର ମାତା ବସୁର କନ୍ୟା ସତ୍ୟାବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପିତା ମହାମୁନି ପରାଶର ଥିଲେ. ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ତିନୋଟି କାଳର ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳକୁ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ. ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଯୁଗର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ. There is a chronological order of 4 millenniums, namely Satya, Dwapara, Treta, Kali, but sometimes there is overlapping. During the regime of Vaivasvata Manu, there was an overlapping of 28th round of the 4 millenniums, and the third millennium appears prior to second. In that particular millennium, Lord Sri Krishna also descends, and because of this there was some particular alteration. The mother of great sage was Satyavati, the daughter of the Vasu fisherman, and the father was the great Parasara Muni. That is history of Vyasadev's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called Sandhya. Vyasadeva appeared in the third Sandhya of that particular age. ठीक है, इसमें हो गया. The Goswami said when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parasara Muni in the womb of Satyavati. तो ये देखिए, the daughter of Vasu, the chronological order is 4 millennium, Satya, Dwapara, Treta, Kali, but sometimes they overlapping. During the time of Bhavishita Manu, there is an overlapping of the 28th round of the. इसका concept को किसी को पता है? The mother of great sage Satyavati and the daughter of Vasu fisherman. And the father was the great Parasara Muni. That is the history of Vyasadeva birth, but the millennium is divided into 3 periods, and each period is called the Sandhya. And Vyasadeva appeared in the third Sandhya, that particular age. तो कौन इसका समझ में आया किसी को? एक्चुअली हमारा जो है सीक्वेंस है ना, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली होता है. इस टाइम में चल रहा है क्या? सत्य, तृतीया, द्वापर, कली उल्टा चल रहा है. द्वापर, द्वा मीन्स 2 मीन्स सेकंड, त्रे मीन्स 3, मतलब सत्य का बाद में द्वापर आना चाहिए, 3 में तृतीया, देन कली आना चाहिए. दिस इज इक्वल सीक्वेंस, याद रखिए. लेकिन अभी हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, जो जिस सीक्वेंस एक रियली आता है, ये ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं ना. भगवान कब आते हैं हम लोग डिस्कस किया था.
ये ब्रह्मा कौन सा द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं? इसी द्वापर में और इसी कड़ी में चैतन्य आते हैं, इसी इसमें राम जी आते हैं, त्रेता हो गया, और इसी इसमें व्यासदेव भी आते हैं। व्यासदेव संशय में नहीं आते हैं। तो दिस इज जो व्यासदेव कली का पहले, जस्ट कली का पहले आते हैं, और आगे ये कलिजुग का बारे में जो शास्त्रों को लिखते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भगवान आते हैं और व्यासदेव भी इसी टाइम में आते हैं। तो ये लिख दिए, और इसलिए में इंटरचेंज होता है, द्वापर और तृतीया इंटरचेंज होता है। समझ आया चित्तर प्रभु? ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଏବେ। ସତ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଥରେ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ, ନଟ୍ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସମୟରେ ଯୁଗ ଗୁଡାକୁ ଆସିବ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି। ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 12 घंटा इज इक्वल टू 1000टा सत्य त्रेता द्वापर कली। एक्चुअली सत्य द्वापर त्रेता कली, उसी में एक 28 युग साइकिल। भाई इसको कितना बार हम बताएंगे कि कब भगवान द्वापर में, कौन सा द्वापर में भगवान आते हैं, कौन सा कली में क्षेत्र आते हैं? धन्य कली। और ये धन्य कली किस लिए बोल रहा है यार? इसलिए बोलते हैं कि ये इसी भगवान इसी कलियुग में आते हैं प्रभु, इस द्वापर में कृष्ण आते हैं, सब द्वापर में नहीं आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन का अंदर जो 12 घंटा में कितना कितना युग होता है, कितना बार क्या कौन सा युग चलता है? हाँ, हजार टाइम सत्य तत्व द्वापर कली होता है ना? नहीं, अरे म्यूट क्यों कर देते भैया? हाँ, चिल्लाऊंगा क्या? समझ नहीं, आई एम सो बिजी, आई एम हैविंग सम ये थिंग्स यार। आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हो। तो बताइए ना कि ये कब 12 घंटा जो है इसमें कितना मनु आते हैं? 14 मनु। वो 14 मनु का टाइम में मैं डिवाइड किया था ना। अगर 1000 थर 1012 उड़िया में बोलूंगा तो बाहमणी मत समझ में नहीं आएगा। 1000 थर सत्य त्रेता द्वापर कली जो हुए ना, से 14 जन मनु आसुଛନ୍ତି। और ये सत्य त्रेता द्वापर कली एगुड़ा थरे गोटे 4टा युग को मिसले गोटे दिव्य युग कहते। क्या ये लिखो यार, इतना बार इसको बोलकर चिल्ला चिल्ला कैसे फट जाएगा। देन हम बताएंगे क्या होता है। तो इसलिए मैं डिवाइड किया था ना, 1000 डिवाइड बाय 14 आसले कितना आसला? 71टा 71 पॉइंट समथिंग अराउंड 272 आता है। बट 71 दिव्य युग ले लो। 71 तो 71 दिव्य युग एक एक मनु का ड्यूरेशन हो गया, क्योंकि 14 मनु हुए तो 71 into 14 हो गया 1000 दिव्य युग। मीन्स 4 युगों को मिलने से एक बोलते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारों को मिला लेंगे ना तो एक दिव्य युग बोलते हैं। इज इट क्लियर? ब्रह्मा का 12 घंटा में 1000 दिव्य युग होता है, समझ गया? और 12 घंटा रात्रि में 1000 दिव्य युग होता है, समझ गया? लेकिन उस टाइम में 12 जो घंटा है उसमें ब्रह्मा सोते रहते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है, मनु फनु का जरूरत नहीं है, उसमें प्रलय होता है यहाँ पे। ओके, यही जो 12 दिन का टाइम जगते हैं उसी टाइम में ये मनु लोग आते हैं। 14 मनु ये दिन ब्रह्मा करो 12 घंटा भीतर आसती, नॉट राति 12 घंटा रे। से 12 घंटा को डिवाइड कले प्रति मनु को लाइफ केते हला, केतरा दिव्य युग? 1000 डिवाइड बाय 14 दिव्य युग हेले केते हला? 71 पॉइंट समथिंग 72 पका होजी, तब 71 युग निया जाउची। बुझी पाला ना नहीं? आगे 14 जण मनु भितरु प्रथम मनु स्वयंभव मनु, और सप्तम मनु होती वैवस्वत मनु। ये सप्तम मनु एबे जो मनु को समय चलची, हमरो जो चलची युगटा कोई युग को मनु को समय चलची एबे वैवस्वत मनु। सप्तम मनु एग्जैक्टली वैवस्वत मनु, बीच वाला मनु का चल रहा है, ठीक है? ये जो बीच वाला मनु एक सब मनु कर ड्यूरेशन होची, लाइफ होची 61टा दिव्य युग। तो वैवस्वत मनु कर जो लाइफ ड्यूरेशन होची केतरा हो? 61टा दिव्य युग। से 61 दिव्य युगर जो 1 रु 61 भितरे जब 28 साइकिल आसीबो, 28 तक दिव्य युग आसीबो, सेही दिव्य युग रे भगवान आसंती। कली रे भगवान चैतन्य महाप्रभु आसुचंती, द्वापर रे आउ सबले आसीबेनी। आउ जे 71 - 1 70 दिव्य युग भितरे अन्य अवतार सब आसंती, असंख्य अवतार आसंती लीला करिया पई। मनु जो बिनो बिनो सब जे डिफरेंट जाय में आसले,
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେନି, ଚୈତନ୍ୟ ଆସିବେନି, ରାମଜୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଏଇ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଏଇ ଯୋଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦିଗ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ନଟ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 70ଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି, ଦ୍ୱାପର ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କୋଉଟାରେ? ଏଇ ଗୋଟେ ଥରରେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା କଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ? ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିଲ ନା ନାହିଁ? Canonical order of 4 billions, namely Satya Dwapara Treta Kali, but sometimes there is overlapping interchange हुए। ଆଉ ସେଇ sometimes ଟା କେତେ ନା ଏଇ ସମୟଟା, ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରେ, ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆମ ସୁତା ବାପ ଗାଁ ଯୋଉଟା, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇ ପାଇଁ ଧନ କଳିରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାତ୍ର ରିସେଣ୍ଟଲି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, 5200 ଆଉ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡା ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ପାଖରେ, ଆଉ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ରଜ ଲୀଳା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଉ କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସି କଣ କହିଲେ, ଆମେ ହରିନାମ କରିକି ନ କରିକି ଆମ ଅନ୍ୟ କାମ କଲେ, ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବୁଝିପାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଯୁଗରେ ହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସନ୍ତି, କଳିରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ, ବୁଝିଲା? ଡାଉଟ ଅଛି କାହାର? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯିଏ ଡାଉଟ କରିବ ତ କାନ ମୁଡିକି 100 ଥର ଏଠି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ଉଠା ବସା ହବ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଆଉଥରେ ପଚାର। କହି ସବୁ କ୍ଲାସରେ କହି ଥବରା ହେଇଯିବ। ଭାଇଆ ପାଠ ପଢୁଛ ନା କଣ କରୁଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଆଇଲାଣି, ଏଟା କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ। କୁछ ଶୁଣତା नहीं है। ସୌମ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରା ପେପର ବିକି ବିକି ବୁଲୁଛି ଏଇ ସମୟରେ, ସେ 90% ସେ ୟାଦ ରଖୁଛି, ଆଉ କେହି ୟାଦ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ହାଉ ଡୁ ପିପୁଲ ଏନକରେଜ ଅଦର ସ୍ପିକର କୁ? କେମିତି ଏନକରେଜ କରିବ? ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି କାହାକୁ? ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବନି ବିଲକୁଲ। ଯାହା ଶୁଣିଲ ଯଦି ସେଇ ବୁଝିପାରୁନ ସେ ସମୟ ପଚାରୁନ। ଏତେ ଖୋଲି ଖୋଲି କହିଲା ପରେ ବି ବୁଝିପାରିବନି, ଆଉ କିଏ ଟିଚର ଆଇବ କତ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବ କେତେ ସମୟ? ତୋ ଜୀବନରେ କିଏ ଆସିବେ ଏଇଭଳିଆ ଟିଚର? ଖୋଜିକି ଆଣୁନ ଯାଇକି, ଏତିକି एफर्ट कहीं देवे भैया, तुमको समझना है नहीं, लेकिन तुम लोग कुछ भी हम रिपीट करते हैं। तो ये संध्या क्या होता है? संध्या गोटे जुग को 3टा संध्या डिवाइड कराई। लिखले ड्यूरिंग दी रिजाइम ऑफ भविष्य, तापरे कहले जो every millennium is divided into 3 periods and each period is called sandhya. Vyasadeva appeared in the 3rd sandhya of that particular age. प्रति जुग को 3टा संध्या, मिलेनियम में जुग, सत्य प्रति जुग को पुणी 3 भाग करा जायछि, ताको 3टा संध्या त्रिसंध्या हम कहउचंती। तो ये पर्टिकुलर एज बोले संध्या बेते appeared in the 3rd संध्या of that particular age. कौन सा पर्टिकुलर एज देखना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव कलिजुग जस्ट आगुरु मत आसिले त्रिसंध्या माने ता आगुरु मान से द्वापर जुगर लास्ट संध्या आसबे से, तो तापरे से लिखिले कलिजुग पई, लिखिले लोकन पई। संधि रु संध्या, ये भी देखो संधि, संधि रु संध्या आमे कोचे त्रिसंध्या करे कार्य गायत्री। त्रिसंध्या माने कोन? राति पाहुची सूर्य उदय हेइनी, एटा भी गोटे संध्या कहा जाए। सूर्य मुंड ऊपर पहुंचले तळकु खसिवाटा जो टाइम ता गोटे संध्या, संधि संधि। AM टू PM, 12 PM, 12 नून, सेटा गोटे संध्या। 6 AM पाखा बाकी, दैट इज कॉल्ड संध्या। 6 PM in the evening is called संध्या। एवरेज कोटी 5:30 पारे, कोटी 6:30 पारे, बट 6 o'clock संध्या। मतलब दिनरु राति हवा संधि टाकू कहंती गोटे संध्या। फोरनून रु आफ्टरनून हवाटा गोटे संध्या, संधि संध्या। सेमती सकाळू राति रु पाई के सकाळ हवाटा गोटे संध्या। तो त्रिसंध्या हमरे गायत्री करा जाय बोली कहला। सेमिति गोटे जुग को 3टा डिवाइड कर, 3टा संध्या डिवाइड करा है, 3 डिवाइड करा है।
ଆଉ ଏ ଯୁଗର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ବି ଓଭରଲାପିଂ ହୁଏ। ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଛି, କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାତ୍ର 5200 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପିରିୟଡ ଆଡି 10,000 ବର୍ଷ, 10,000 years ଇଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟୁରେସନ ଟା, ଏ ସନ୍ଧି ଟାଇମ। वही सब समझ में आ रहा है जो मैं थोड़ा जितना डिस्कस किया समझ में आया नहीं है? हाँ गुरु। और दूसरा को इसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करिए, रेज करिए। अच्छा, जिसको समझ में आ गया वो दूसरा को समझाएगा, या जिसको समझा नहीं है उसको समझाइए। शाम को आज बैठिए, समझाइए, सैटरडे संडे क्लास करिए, डेली शाम को क्लास होना चाहिए। मैं बोला क्या करते हैं आप लोग, इतना भी बिजी क्या रहते हैं? एटलीस्ट 7 दिन में तो 2-4 दिन तो ज्वाइन कर सकते हैं ना? नहीं वांसो कदाचित् सरस्वत्या उपस्य जलम शुचि विविक्त एव आसीनो उदितेर अभिमंडले। Once upon a time, the son rose, took his morning ablution in water, and Saraswati settled on to concentrate. क्या concentrate? Mind को ध्यान करके क्या कहे? The river Saraswati is flowing in the Badrikashram, where the Himalaya. बद्रिकाश्रम क्यों बोलते हैं? वहाँ पे जो बद्री गच्छ बहुत अच्छी, बरकोली गच्छ, बद्रिकाश्रम। व्यासदेव को गुफा देती अच्छी। हमें थोड़ा ट्राई मारथिलु किंतु से जाई हलानी। Area of the Himalaya, so the place indicated here is Samyaprasya in Badrikashram, Samyaprasya, where this Vasudev is residing. Vasudev गुफा छिटी, से called Samyaprasya. Badrikashram गोटे जगह ना होजी Samyaprasya। तापरे the great sage Vasudev saw the anomalies in the duty next progress of the millennium. This happens on the earth in different ages due to unseen forces in the course of time. The great sage like Vasudev are liberated souls, therefore they can see clearly past and future. Thus he could see the future anomalies in Kali Yuga, and accordingly he made arrangement for the people in general to say so that they can execute their progressive life in this age. This is which is full of darkness. The people in general in this age Kali are too much interested in matter which is temporary. Because of the ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and enlisted in spiritual knowledge. आमर अज्ञता पाई, because हमें जानी पारनु ये ह्यूमन लाइफ रो वैल्यूटा कौन बोले। दैट्स व्हाई हम लोग ये स्पिरिचुअल नॉलेज को लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जिसका जिस टाइप का भक्त है, जो एंथुसियास्टिक भक्त है, उसका साथ में जोड़ेगा, उसका पीछे पीछे सब समय रहेगा। हाँ, हो सकता है फिजिकली रहो, नहीं तो उसको मेंटली भी फॉलो करो। मैं बार बार बोला था टेक्निक से बता है, लेकिन कोई टेक्निक को ग्रहण नहीं करता। हरे कृष्ण। तेणु लोकों को टेक्निक सब बता दिया गला, से टेक्निक टाको के यूज कले होगा। वन टेक्निक इज दैट आप जिस भक्त को प्यार करते हो उसको फॉलो करो। शुद्ध भक्त को तो अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्त को पहुंच नहीं पाते, तो जो शुद्ध से थोड़ा कम भी है लेकिन शुद्ध को फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करो। तो ये टेक्निक है। क्या फॉलो करो? तो मतलब हो सकता है कि इसका पीछे पीछे जाओ, तो हम ही तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोले धाए तो पचे पचे, लेकिन हम लोग नहीं जाएगा। एटलीस्ट फिजिकली जाए, टाइम नहीं है भाई, हम अलग जगह में है, वो में है, हो सकता है दूर में है, तो हम फिजिकली सबसे नहीं जा पाते हैं, तो महीना में एक बार जाओ। हमारा इसमें लिखा गया गुरुदेव को बाहर में कंट्री में रहते हैं तो एक बार साल में एक बार दर्शन करो। जो अगर पास में है तो महीना में एक बार जाओ, अगर और भी पास में तो हफ्ता में एक बार जाओ। इसलिए बोला वो जाके उनका जाके क्या सुनना है, उनका पाठ से बैठोगे तो वो आपको दिव्य ज्ञान देंगे और उनका आशीर्वाद देंगे, और इसलिए सुनना पड़ेगा। श्रवण उनका माध्यम से करो। अगर उसको फिजिकली नहीं जा पा रहे, मेरा टेक्निक में जो सिना हूं, मैं सिखाया हूं, उसको बता रहा हूं।
तो मेंटली उसको फॉलो करो। आज वो डिवोटी कहाँ क्या कर रहा होगा, कहाँ कर रहा होगा, एक बार बात कर लें, किस टाइम में मिल सकते हैं तो मिल लें। तो ये सब टेक्निक यूज करो, लेकिन सिंपल टेक्निक है, इसमें बहुत कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बहुत ये नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको उसका दिल को जीत लो। ऐसा है, क्या करने से दिल को जीतेगा, उनका बात मानना है, उनका पास में बैठो, उनका श्रवण करो, उनका फिजिकल सर्विस अगर होगा तो करो, नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, लोग को जल्द लगता होगा ये सब बेकार बात कह रहे हैं ना, क्या बढ़ा के बात कर रहे हैं, चढ़ा के बात नहीं, वो फैक्ट है। तो इसलिए इसको टेक्निक को बता दिया, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं तो कि नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये टेक्निक को लीजिए, इतना इतना फ्रीली ये सब कॉन्फिडेंशियल टेक्निक है, हमारा टीचर बताया, उसी को हम बोल रहे हैं, ये टेक्निक को यूज करो। अभी जस्ट फोन आया था गोविंद प्रभु का, अभी बोले थे, मैं बोला ठीक, थोड़ा क्लास का करता हूँ, बोला मैं एक तारीख को हमको, हम जो दोनों जी थे आचार्य प्रभु, हम लोग थोड़ा लेट हो गया मीटिंग का बाद में दर्शन करने की पूरी, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, तो वो बहुत ट्राई करे, तो वो लोग चल निकल चुके थे, तो उस दिन हम दर्शन नहीं हो पाया, तो जाके बाहर से वहां से दर्शन किया नील चक्र को, और लकीली महाप्रसाद को ही भक्त लेके आए थे, बाहर का भक्त वहां पहुंच गया हम लोग, तो वहां से थोड़ा सा प्रसाद महाप्रसाद मिला, तो मैं बोला भगवान का अन्न ब्रह्म भगवान से नॉन डिफरेंट है, नील चक्र भगवान से नॉन डिफरेंट है, हम दर्शन करके आ गया। तो अभी वही फोन किए थे, मतलब बाद में करता, बोला प्रभु जी उसी दिन से हमको मेरा अंदर में कुछ आलोड़न हो रहा है, आंदोलन हो रहा है कि हम उस दिन आपको थोड़ा सा ये दर्शन कराने के लिए हेल्प नहीं कर पाया, तो अभी फोन किए थे, तो मेरा रुकिए रुकिए, डोंट वरी, मैं फोन करता हूँ। आपको इस तरह का व्याकुल होगा ना कोई डिवोटी के लिए, तो अभी आशीर्वाद मिल जाएगा। कोई हम तो भक्त नहीं है, आप लोग व्याकुल होना चाहिए। अभी देखिए कल प्रभु हम लोग क्लास हुआ था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन क्लास, 8:30 बजे से रात 10 बजे तक मीटिंग हुआ, उसमें अभी बोले था हमारे प्रभु ने, मेरे को टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का चार्ज मत दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम इतना जो कर रहे हैं, अभी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का इंटरेस्ट है, वो इसी के लिए मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करूंगा, ये जाऊंगा तो प्रचार बंद हो जाएगा। सेकेंड, मेरे को मंदिर का चलाने के लिए यहाँ पे 4 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, लेकिन कोई भी एक हमारा पास में लड़का नहीं है जो कि जाके पैसा कलेक्शन कर सके बुर्ला से या उधर से। हमको इधर उधर क्लास करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है इधर, क्योंकि कुछ भक्त तो टच में रहना पड़ता है, पहले तो बहुत करते थे इधर, सो दैट वो लोग लक्ष्मी कुछ डोनेट कर सकता है मंदिर के लिए, तो इसलिए हम ये भाग रहे हैं। लेकिन मेरा 4 लाख रुपया चाहिए पर मंथ, कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम टेंशन हो रहे हैं। आप लोग मेरे को बोले टेम्पल कंस्ट्रक्शन में डालो, तो उनका मन का बात है, हृदय का बात बोल दिया, तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कुछ सेवा कर सकता है क्या, लेकिन हम लोग नहीं करेगा, तो दिव्य का हृदय में प्रकाश नहीं होगा। ये जितना पढ़ेगा, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्यों ही याद नहीं रह रहा है। आप लोग का मेमोरी बहुत अच्छा है मेरे से, मैं नो मेरा तो मेमोरी है ही नहीं, ये थोड़ा सा चौक था, अभी तो 0 हो गया। ये मेमोरी आएगा तब जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश करेगा। मैं परसों पता था प्रभु आएंगे बोल के सुन के आया था, परसों उनको फोन नहीं किया, भाई प्रभु को फोन किया, प्रभु आज आएंगे, आ रहे हैं, क्योंकि और एक जगह प्रोग्राम का भी फिक्सिंग करना भी था, और ऐसे ही भाई प्रभु बोला नहीं नहीं आज नहीं है, आज आना था, नहीं आ रहे, क्योंकि 50 डिवोटी के लिए ट्रेन में प्रसाद देना है, बोले है यहाँ पे रह के, कहाँ पे है ना, अभी किचन में है, कुकिंग किचन में प्रसाद के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कब जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, कल मतलब परसों, तो मैं बोला परसों तो कब जाएंगे, मतलब गोपाल को लेके आएंगे तो 9-10 बजे प्रसाद पाके आएंगे, शाम को 4 बजे पहुंचेंगे, तो रेस्ट लेंगे, तो थोड़ा सा ये होगा। मैं फोन नहीं किया, कल सवेरे उनको फिर देख के 9:40 में ऑफिस में पहुंच के 9:40 में फोन किया, तो पता था 9 बजे तक वो बिजी रहेंगे, 9:30 प्रसाद पाएंगे, शेड्यूल हमको पता है जनरली, उसका बाद में थोड़ा रेस्ट लेंगे, इसलिए उसी बीच में फोन किया, मैं खोल के बता रहा हूँ। तो देन मौला की एक प्रोग्राम होता है, आज होगा, पूछिए ठीक है, आज मैं शाम को फ्री है। मैं बोला आज अगर जरूरत पड़ेगा आप रहेंगे वहां पे, मैं जाऊंगा कटक, बोला हाँ है, और ठीक है मैं प्लान करके बताओ, आई सो बिजी, तो लेकिन मेरे को चांस मिला, 3:30 बजे फोन किया, 3:35 में मैं रास्ता में हूँ बोल के बोल दिया, अच्छा जी था आप है तो ना, हाँ आ गया, तो मैं 4:10 में गया, फिर वहां से 5:30 में निकला, 5:25। तो कहने का मतलब है आप फॉलो करो ना, ये सब खोल के कोई बताता नहीं है, ये कोई जाइए पृथ्वी में कोई लोग नहीं बताएगा ये सब टेक्निक को, हमारा टीचर बताया था, उसको थोड़ा मैं
और थोड़ा रफली बता के नीचे लेवल तक बता रहा हूँ। इतना बोलता नहीं था, वो बता दिया कुछ साइंस को बता दिया, लेकिन आप लोग बोला नहीं चाहिए। एक एक भक्त किसी को फॉलो करते हो आप? कोई कोई किसी को लाइक करते हो, जो भी भक्त को उसको फॉलो करते हो क्या? वो दिन भर क्या करता है, कैसे करता है, क्या करता है, क्या कर रहा होगा अभी, ये प्यार का बात है। जिससे ना हम लोग किसी भगवान को तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी से सो कॉल्ड लवर को उड़ गई होगी क्या? अच्छा, अभी अभी क्या कर रही होगी हैं? अच्छा, अभी कुकिंग कर रही होगी, अभी जा रही होगी, कब फ्री होगी मैं थोड़ा मैसेज कर दूं, कब फ्री होगी हम बात कर लेंगे। अच्छा, हमको पार्क में मिल सकता है क्या? ऐसे होता है? ये सब प्रैक्टिकल हम लोग का भी होता है, लेकिन भगवान जब ये सब बंधन में हो जाता है भक्त के लिए ऐसे होना चाहिए। सारे चीज परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसी को कन्वर्ट करके कृष्ण का धर्म में मोड़ लेना है। तो एक एक लवर डेवलप करो। कृष्ण को हो सकता था अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है मेरा, तो हम लोग ये लवर को ढूंढना है। लवर ढूंढो और उस लवर का फॉलो करो उसको, उसका हर चीज को आपको अच्छा लगेगा, ऐसे होना चाहिए। वो अगर गाली भी देगा अच्छा लगेगा, वो प्यार से बात करेगा तो भी अच्छा लगेगा, उसका चलने का ढंग अगर माइचिया जैसे भी चलेगा आपको अच्छा लगेगा, वो उसको वो तट्टी जाएगा भी उसका अच्छा लगेगा, उसका हर चीज को अगर अच्छा लगेगा तभी वो जो बोल देगा आपका लाइफ का वही अहम है। उसी को इतना बढ़िया बात कैसे बोल दिया, इसको बोलते लवर। लवर दूसरे लवर का ना कभी गलती नहीं देखता है, गलती होता ही नहीं अगर शुद्ध भक्त है, फिर भी हमारा आंख में गलतियां दिख लेता है, लेकिन वो गलती को बड़ी बढ़िया है। चंद्रमा में एक ठेकुआ बैठा है, ब्लैक स्पॉट, वो ब्लैक स्पॉट उसका क्या बोल रहता है, उसका सौंदर्य को वर्धन करता है। इसलिए लवर का हर चीज अगर गाली भी देता है तो अच्छा लगेगा, प्यार से बोलेगा अच्छा लगेगा, उसका कोई खराब चीज है उसको भी अच्छा लगेगा, उसका कुछ भी चीज है और दूसरे लोग बोलेंगे बेकार आदमी है उसको बोलेगा, लेकिन आप बोले बढ़िया है इसका क्वालिटी, यही क्वालिटी हमको प्यार लगता है, इसी क्वालिटी तो होना चाहिए। अभी बोलते हैं कि सुता प्रभु या चित्र में बोलेंगे ये टेक्निक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसको करिए तो देखिए उसके बाद में भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, सारे याद रहेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज सर कहाँ जाएगा, सब याद रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल दिव्यगन हृदय में प्रकाश हो जाएगा। उसको थोड़ी पढ़ के याद रखना है, पढ़ना है जैसे बार, लेकिन ये सब प्रकाश जितना बार पढ़ेंगे कुछ भी धारण नहीं कर सकते। मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, एक बार नहीं बताया, बहुत बार बताया। एक लवर को डेवलप करो, इसके आप उसका कोई भी चीज खराब लगेगा नहीं आपको। जैसे उस टाइप का देखो कोई आदमी है आपके लिए आपका जिंदगी में, उसको फॉलो करो थोड़ा, एटलीस्ट 99.9% उसका कोई चीज को खराब नहीं लगता। गाली देगा भी अच्छा है, प्यार करेगा भी अच्छा है, जो भी करेगा अच्छा लगेगा। जैसे उसका इसमें कितना बढ़िया चीज है इसका पास में, ऐसे ही देखना पड़ेगा। पता नहीं ये टेक्निक कितना बार बोला है, किसी को याद है ये टेक्निक? ये टेक्निक कोई यूज ही नहीं करते हैं। फॉलो करो ना उसका, दिन में एक बार बात ही नहीं करते वो, कोई किसी से मतलब क्या होगा कि कोई लवर से बात करेगा, नहीं करता, मैसेज करता है। हरे कृष्ण, श्याम कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। Now I'm little bit busy. I'm getting ready. I need to go somewhere today. So just decide what's over. So just आप लोग एक का बाद एक बोलते जाइए. Just I'm hearing, but I may not interact. Starting from Shyam Krishna Prabhu, then Padmavati Mataji, then Sutapa Prabhu, then Astos Prabhu, then Chitta Prabhu, then rest Kulamani and Mitrani Mataji if they want. Hare Krishna. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ये तो जो क्लास आज है तो सर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में डिस्कशन हुआ, भगवान के बारे में डिस्कशन हुआ और ओम के बारे में हुआ। ओम तो कृष्ण, राधा रानी और उनके जीव, तो कृष्ण और उनके एनर्जी, और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ भी ऐसा ही है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है, जो कि टेक्निकलिटीज हैं, फिलोसफी है, और भागवतम का जो हम श्रवण कर रहे हैं, इसका ये नॉलेज को लेकर हम आगे जाएंगे
तो फिर भागवतम का जो जो बोला गया है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जो स्कंद पढ़ के जाएंगे तो फिर हमको जो 10वें स्कंद और एकादश द्वादश में हमको ये समझ में आएगा भगवान का जो फीचर्स है। तो भगवान के बारे में जो अभी सौनक आदि ऋषि जो कि महान महान ऋषि हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं और सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जो सुने थे वो भी उनको एलाबोरेट करेंगे। तो ये जो थोड़ा मैथमेटिक्स जो इसमें आ रहा है कि 12 है, 1000 है, 14 है, 71 है, 28 है, तो इसको थोड़ा मतलब कोई इमीडिएटली पूछेगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं और उनके ऊपर भागवत के ऊपर निष्ठा रहता है, भगवान के प्रति भगवान के जो नॉलेज है, जो क्रिएशन है, तो ये भगवान के बारे में ही है, तो उनके प्रति जो निष्ठा रहता है तो फिर ये जो है याद रहता है। 12,000, 4, 14, 71, 28 ओवरलैपिंग, ये सब जो है कहीं भी कभी भी कोई पूछेगा तो फिर याद रह जाएगा। फिर आप बता दें, क्योंकि ये मेरे जो सर जो बोल रहे थे किसको लव कर रहे थे, तो मेरे जो हम जीव हैं तो प्रियतम के बारे में, तो हम उनके दास हैं, तो उनके बारे में जो है कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, तो जिनको उनके प्रति जो निष्ठा रहेगा तो फिर ये सब सुलभ हो जाता है, याद रह जाता है। और ऐसे ही जो है जो निष्ठा पर भक्तों से जो हम सुनते हैं तो और ये सुलभ हो जाते हैं। जिनको श्रद्धा है, आपको श्रद्धा बढ़ाना है तो फिर जो श्रद्धावान है उनका संग करिए, उनसे श्रवण करिए, तो उनका जो भाव है उसको थोड़ा उनको भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका जो व्यग्रता है और वो कैसे उनको याद रखे हैं, ये सब हमारा जो नित्य क्लास हो रहा है तो उसमें ये सब परिलक्षित हो जाता है। हमारे सर बहुत प्रयास करके ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके श्रद्धा से वो भी समझे हैं, तो हम जो क्लास में जुड़ेंगे तो ये समझने का उनके पास बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा। तो मैं वो अवसर मिला है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे आई फील फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस साधु संघ। सो ऑल आर ऑल्सो फॉर्चुनेट। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे आप सबका संग मुझे मिल रहा है, तो सर का भी संग मिल रहा है, वरिष्ठ वैष्णव है इस ग्रुप में तो उनका भी संग मिल रहा है, तो इसलिए मैं सबको सर को बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता देता हूँ और सभी वैष्णवी जो इस ग्रुप में है सबको मैं दंडवत प्रणाम और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम श्रील ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नेक्स्ट आप बोलते जाइए ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज सब सुंदर सुंदर आलोचना है। एक्चुअली ये डिवोटी एसोसिएशन रहा द्वारा आमको अनेक उत्साह मिलूँ। तापर ये जो सर आज जो आलोचना रखिले माने माने जो हिमालय जो बद्रिकाश्रम जो से अंचल जो सरस्वती नदी प्रवाहित होती सेठी माने सेठी व्यासदेव जो माने जो ध्यान करथिले, एकाकी बसी ध्यान करथिले, तेणु यही सब जगह सब माने यही सब जगह भागवत मोर सब जानिया मिलुछु। तापर ये जो माने ब्राह्मण मानकर कौन काम आ परिव्राजक कौन आम एक्चुअली हिस्ट्री सब पढ़ीचु, किंतु डेली नुआ नुआ अनेक तथ्य माने जानिया को मिलुछु, माने बहुत सुंदर। तेणु जी माने जो परिव्राजक जो माने सैक्रिफाइस करछन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू ऑल, से मान को परिव्राजक कह जाउची एवं श्रील प्रभुपाद सी भी परिव्राजक जाउचंती। कहीं ये जो ईमान को कह जो विद्वान प्रचारक, कहीं से काम हो सब दिव्य ज्ञान प्रदान करवा एवं माने अन्यर मंगल कामना करवा। टू डिजायर फॉर द गुड ऑफ अदर्स इज द मदर ऑफ वन्स ओन गुड। से सब माने माने से स्वार्थपर ये दृष्टि माने अन्यर मंगल कामना सब चिंता कर सब व्यस्त था, से चाहती भगवान को समस्ते जोड़ी हुई रुहतु।
କାଲି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ସିଏ ମାନେ କେହି ବି ରଖିପାରିଲେନି। ସବୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛୁ, ମାନେ ଡେଲି କିଛି ନା ଘଟଣା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ହେ ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା ସେ ପୁରୀରେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ପୁରୀରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଟୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେମିତି ଡେଥ୍। ଡେଲି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଅନି, ସିଏ ସେଇଟା ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାବେ କହେ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର କେହି ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇସବୁ କରିବା, ତା'ର ମାନେ ଶ୍ରେୟ ଯେ ନିଜକୁ ଯିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସମୟ ଆସିନି। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶେଷ କରି ମୋ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ଲେଭେଲ୍ ଆସିନି। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ କୁହାଯାଏ, ଗାଳି କରାଯାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ, ମାନେ ଆମର ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଆଲୋଚନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜଣେ କୁଳମଣି ପ୍ରଭୁ ଅତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଡିଭୋଟି, ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ମିଳିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଉ। ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ। ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज तीन चार श्लोक आलोचना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कहते। तेणु किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्रजा होची प्रजायति इति प्रजा, और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस विषय जोटा कि गोटे एग्जांपल है गोटे डोनेटिंग टू चैरिटी, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, बीइंग काइंड, ये सब कोन व्हाट बेनिफिट्स मी इन लॉन्ग टर्म थ्रू अदर्स, एटा चिंता करियो। जब प्योर सेल्फिशनेस होची व्हाट बेनिफिट्स आर राइट नाउ, वर्तमान हम सांगे जोड़ा बेनिफिट हम चाहूचे सेटा होची सेल्फिशनेस, जोटा हमें लॉन्ग टर्म रे हमें बेनिफिट अनदन द्वारा पाए चाहूचे सेटा होची एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। तो बोलो पहले तो एंड पुराण गोटे मिनिट गोटे भूल गला, निज पई जोटा होची सेटा होची सेल्फिशनेस। निजर शरीर रिलेटेड जो मान अछंती एक्सटेंड हेई जाउचंती, जेमति स्त्री पिला, ये एक्सटेंड सेल्फिशनेस। पुनी आउ सेटा सोसाइटी को एक्सटेंड हेई गला, मो सोसाइटी एटा आउरी फर्दर एक्सटेंड सेल्फिशनेस, मो कंट्री further extend selfless. Bodily related any things is related to center, self center means nijo body by extend selfless means अन्य मानकर body but related to my body, this is called extend, not that long term self. Okay, धन्यवाद प्रभु। करेक्शन वेद पुराण, वेद ब्राह्मण सहित तुलना कले पुराण को परिव्राजक संगे तुलना करा आ गोटे इम्पोर्टेंट है 3 टाइप्स ऑफ सन्यासी, कुटी चक्र, बहुदक आ परिव्राजक आचार्य। कुटी चक्र होचे से घरु बाहर जांती, कुटी चक्र बोली कहा जाए। हां माने चक्र से घरु बाहर जांती आ गोटे जगह रही थांती।
मोरे जीव तेणु आउ गोटे हूँ आब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य आउ गॉड भगवान भितर कौन डिफरेंस जदि परम सत्य जो होती एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण एंड हिज एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी एंड जीव शक्ति जोड़ा अच्छी तटस्थ शक्ति मार्जिनाल एनर्जी आउ खाली जदि कृष्ण को देखिए विदाउट एनर्जी ताले सी होचंती भगवान गोटे एग्जांपल आमे देई परिबा जदि परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ इज इलेक्ट्रिसिटी ताले गॉड हेबे गोटे लाइट बल्ब नै सेठ भगवान गोटे स्वरूप को आमे पूजा करि परछे सेटे होचंती भगवान आ व्यासदेव का विषय आमे जानिले तांकर जीवन के तांकर पिता का नाम होची महामुनि पराशर माता होचन सत्यवती आ से जो हमर ब्रह्मांकर आयुष गोटे दिन जदि हवा दिन आ राति गोटे दिन हूँ हजार थर दिव्य जगत यदि आसो से हजार थर दिव्य जुगे 14 जन मनु आसती तेणु जड़े मनुकर आयुष प्राय 71.4 दिव्य जुग तेणु वैवस्वत मनु जो सप्तम मनु तांकर 28तम दिव्य जुगे तेतरा जुग पूर्व द्वापर आसीगला द्वापर जुग पूर्व तेते आसला से जो द्वापर जुगे से धन्य कली तापर से जो कली जुग आसला द्वापर जुगे से कृष्ण आ कली जुगे चैतन्य महाप्रभु आसते व्यासदेव बासस्थान हूँ बद्रिकाश्रम जो श्याम प्रास गोटे जगह अच्छी हिमालय अच्छी सरस्वती नदी कूल ये व्यासदेव आम आसते त्रिसंध्या 3 भाग करा जुगरू जुग को त्रिसंध्या से शेष संध्या रे आसते संध्या जोटा कहते गोटे प्रभात समय गोटे द्विपहर आ गोटे संध्या समय ये सब जिनस आम आज किसी जाना पाइलु चेष्टा करूँ मन रही